So timber carrier, if you see, it looks like this when she is fully loaded. दूर से similar like container ships, careful load of deck cargo. Now there continues to be a steady incident of this timber deck cargoes being lost overboard, sometimes with catastrophic result for ship and crew, and therefore more important than ever to ensure that the carriage, stowage and securing of timber cargoes do not fall short of any currently accepted guidelines, codes, recommendations. And of course, as a chief officer, we do all these things, we study and we take enough precautions that are not only timber, all the cargo that we should be able to deliver in good condition. So again, including IMO cargo securing manual, so that also we should refer, and this is your code of safe practice for ships carrying timber deck cargoes. So there are plenty of codes. So at least I know people should not ask you कि इसके अंदर इसके nobody can remember the book, पर थोड़े contents कि हाँ यार इसके अंदर दिया क्या होता है, so that in case if I have a doubt, so I should know कि यार इस book के अंदर मिलेगा या कौन सी book के अंदर मिलेगा. That is my way of looking at it. Every code you should have a knowledge कि यार इस कोड में है क्या, IMDG के अंदर क्या है, MSBC के अंदर क्या है, टिम्बर कोड के अंदर what all information is there. First we have the book with us on the ship, we can anytime open, so we should know a little bit. Now ये जो कोड था, it was first developed in again 72, subsequently amended in 78 and then 91, and finally you have the latest is 2011. So ये भी बच्चे कोड्स का भी लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट अमेंडमेंट, ये भी थोड़ी सी आपको ओरल्स के लिए स्पेशली कीप इट इन माइंड दैट सारे कोड जो भी हैं स्पेशली विद द कार्गो, दैट व्हाट इज द लेटेस्ट कोड एंड एनीथिंग न्यू, so nobody bothers for what is been passed. So everyone knows कि हाँ यार लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेटेस्ट रिकमेंडेशन क्या है. Now all these codes keep revising. Why? Because you know, you have also seen, we have seen enough changing technology, different cargoes coming into market and different ways of handling these cargoes. So that's why you need these codes to be basically amended. Now this code applies to all ships of 24 meter or more in length carrying timber deck cargo, and the aim of this code is to ensure stowage and cargo securing arrangements for timber deck cargoes enable a safe yet rational securing of the cargo so that it is satisfactorily prevented from shifting. So this is what the basically the code's guidelines are there, and also includes alternative design principles taking into account the acceleration forces cargo may be subjected to throughout the voyage. So this it contains. Basically, if you see, the purpose of this code or any code is practice for safe transportation, methodologies for safe stowage and securing, design principles for securing systems. As I was telling you, all these calculations. So even in the codes, somewhere they show calculations that how they arrive, how much lashing, size, braking stress, everything they calculate and they give us. And guidance for developing procedures to be included in the ship's cargo securing manuals. And then of course the sample checklists. Now provisions of code apply to all ships and has been effective since 30th November 2011, and securing of this cargo shall be according to cargo securing manual. We will not go what is mentioned there. So यही जो हमने देखा है, this is as per the CSM also. Contents, chapter 1 purpose, application, definitions, and chapter 2 which is part of part A, operational requirements. So operational requirements में कि yes, pre-loading operation, permitted loading weights on decks and hatch covers, which is given to us even in the plans, stability, load line, timber freeboard. So they all give you the operational requirements, visibility, work safety, work environment, stowage, securing. So all these things are given into your part or chapter 2 or part A where the operational requirements are concerned. Chapter 3 is visibility. They give you the method also how to calculate the visibility, what will be because of the varying heights of your cargo. Of course today indicators उसके अंदर भी feed होगा. So you just click a button and you get the visibility like container ships. And then chapter 4 physical properties of timber cargoes.
So anytime if you are subjected to कि यार ये टिम्बर जो है इसकी डेंसिटी क्या है, हाउ मच वाटर एब्जॉर्प्शन, ये कितना पानी ऑब्जर्व करेगी, दैट इज ऑल्सो गिवन, दैट हाउ मच वाटर दिस टिम्बर, plastic covers, packing, weight of ice, rigidity, everything is given in this book. Part A. Part B, design and cargo securing arrangements. ये थोड़े से complicated हैं, lot of calculations are given in this. And chapter 6, alternative design principles. यहाँ पे भी physical properties of timber, safety factors and accelerations and forces acting on this. Then uprights, उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए. नॉट मच ऑफ प्रैक्टिकल यूज, बट समटाइम द सर्वेयर्स कैन आस्क यू यार इसके अंदर कंटेंट्स क्या दिया, क्या क्या हुआ. चलो बाकी तो आपके एनेक्सेस हैं, सो दिस यू कैन रीड. नाउ कम्स द स्टोरेज एंड सिक्योरिंग ऑफ टिम्बर डेक कार्गोस एज लेड डाउन बाय दिस टिम्बर कोड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टिम्बर, व्हाट द टिम्बर मीन्स. Timber means sawn wood, lumber, cans, logs, poles, pulpwood and other type of timber in loose or packaged form. So अब तक तो हम देख रहे थे what we saw is the big tree trunks cut and loaded. और timber के दूसरे तरीके भी हैं, sometimes sawn timber in packaged form, expensive wood, उसको सबको cover करके, so that is slightly different. And timber deck cargo means a cargo of timber which is carried on the uncovered part of a freeboard or superstructure deck. तो ये तो सिंपल है, बट कई बार क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टिम्बर डेक कार्गो. द कार्गो व्हिच इज कैरीड ऑन द अनकवर्ड पार्ट ऑफ अ फ्रीबोर्ड डेक. अभी आपकी टिम्बर लोड लाइंस. हाँ जी. Since the previous slide, sir, what is the difference between this pulp wood and wood pulp? Yeah, which pulp wood is slightly different. It is like you see, you know, wood chips and all that, whereas जो आपकी वुड पल्प है, वुड पल्प इज लाइक अ सेमी प्रोडक्ट, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बिफोर पेपर इज मेड. वुड पल्प अगर आप देखिए ये बेल्स में आता है, वाइट वाइट जैसे आपके, आई कैन गिव यू एग्जांपल, सोपैप में आपने एब्जॉर्प्शन पैड्स देखे होंगे शिप पे वाइट कलर के. यस सर, यस सर. या वुड पल्प इज उस टाइप के शीट्स होते हैं. ओके सर. बेसिकली बेल्स होती हैं, स्टील बैंड से उसको रैप किया होता है. इट्स अ मोस्ट डेंजरस कार्गो, वुड पल्प. Because of the absorption of water, they expand and yes, it expands fantastically. And there was a ship called Jala Murari. Yes, sir. 78, 79. She sank in Pacific. Yes. She was carrying wood pulp. Water entered into the holds, and this wood pulp expands terribly. And it can, you know, कहीं ना कहीं से वो weak point को क्रैक करेगी, hatch cover या कहीं ना कहीं से होगा. So that is the dangerous part. And pulpwood is the chips of woods. Yeah, chips of woods, like you can say. Okay. Okay. Thank you, sir. Now, timber load lines. अभी आप सबने देखा होगा. If I show you this timber load lines are slightly higher, isn't it? We call lumber load lines. Lumber tropical fresh, lumber tropical, lumber summer, lumber winter, and these are your normal load lines. अब अगर आप इसकी summer देखिए, lumber summer is higher up than your normal summer. That means ship can load more deeper. अब ये क्यों किया जाता है? Why it is? Of course, load line moves, very big thing. Timber जो होता है extra buoyancy provide करता है सर deck पे. Yeah, very right. Anything else? चलो. Now, timber load line means a special load line assigned to ships complying with certain conditions related to their construction set out in the International Convention on Load Lines and used. अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोड लाइंस किसको दी जाती हैं? द शिप हैज़ टू हैव अ, आपकी कंस्ट्रक्शन बस में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ी थोड़ी उसकी जो टर्म कंडीशन है क्या क्या होना चाहिए. एग्जांपल, रेज्ड फोक्सल होनी चाहिए, डीवीज में सब डिवीजन जो है थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द फ्री सरफेस इफेक्ट एंड ऑल दैट. सो देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स जिसके अंडर आप उसको कंप्लाई करते हो. देन दे से कि ओके, इफ यू आर सेटिस्फाइंग ऑल दीज कंडीशन एंड एज पर द लोड लाइन रूल्स, देन दे गिव यू दिस टिम्बर लोड लाइन्स. And when you have to use these timber load lines, अब आपका क्वेश्चन आता है, you are a chief officer and I am the charterer. मैं आपको स्ट्रेट पे कहूँगा कि भैया I want to load the maximum cargo, so use the timber load lines. अब वहाँ पे उसको भी हम पढ़ेंगे कि when I have to use the timber load lines, if I want to use the timber load lines, फिर वहाँ पे भी थोड़ी सी टर्म्स आ जाती हैं
कि आपका जो कार्गो है आपके जो टिम्बर कोड के अकॉर्डिंगली लोड होना चाहिए। टिम्बर कोड में क्या लिखा है, व्हेन यू वांट टू यूज दिस टिम्बर लोड लाइंस, उसमें भी थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। सो दिस इज बेसिकली योर टिम्बर लोड लाइंस। अब ये जो है कि यस डीपर इमर्शन क्यों अलाउ की गई है, कम फ्री बोर्ड क्यों अलाउ किया गया, द वेदर डेक मीन्स अपर मोस्ट कंप्लीट डेक and the general principle involved is that if a vessel of adequate structural strength to warrant the deeper immersion is carrying a deck load of timber stored and secured accordance with the code of safe practices, means आपने अगर टिम्बर कोड के अकॉर्डिंगली इसको लोड और सिक्योर किया है, कितनी हाइट तक कितनी लेंथ ब्रेड्थ तक करना है, देन यू कैन यूज दिस लोड लाइंस। तो इसका थ्री फोल्ड इफेक्ट है। क्या क्या इफेक्ट है, एक तो जैसे आपने कहा रिजर्व बुओयेंसी इज इंक्रीज बाय कॉम्पैक्ट मास ऑफ बुओयंट मटेरियल अबव द फ्रीबोर्ड डेक, राइट। सेकंड, द इफेक्टिव फ्रीबोर्ड इज इंक्रीज्ड विद द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द रेंज ऑफ पॉजिटिव स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबिलिटी आप पढ़ोगे तो आप देखोगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीबोर्ड ऑन द स्टेबिलिटी, isn't it? So आप देखिए अगर आपका फ्रीबोर्ड ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपकी जो रेंज ऑफ स्टेबिलिटी है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। सो आई कैन नॉट डिस्कस। सर कंटेनर में भी ऐसे होता है सर? और कंटेनर में तो बच्चे गैप्स है ना इसमें, अब इसमें तो गैप नहीं है, इसमें तो एक किस्म का पूरा फ्रीबोर्ड हमारा ऊपर हो गया, कंटेनर के तो बीच में गैप्स है। बट उसका भी है कि यस उसका विंड इफेक्ट वगैरह उसको इफेक्ट करता है, बट स्टेबिलिटी जो है उसकी थोड़ी सी या एंड वेदर डेक हैचेज आर प्रोटेक्टेड। एक तो आपने हैच कवर वैसे बैटन डाउन किया, ऊपर से उसके ऊपर इतना लोड डाल दिया, सो देयर इज योर शिप इज मोर सिक्योर, कुछ भी होगा देयर इज नो चांसेस ऑफ फ्लडिंग। सो इन बेसिस के ऊपर ऑन दिस अकाउंट द वेसल इज जस्टिफाइड इन लोडिंग टू अ डीपर ड्राफ्ट दैट वुड बी अलाउड इफ शी हैड नो डेक कार्गो एट ऑल। इसमें थोड़ी सी कंडीशन है, स्पेशल लोड लाइंस कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द शिप इज कैरिंग अ कार्गो ऑफ टिम्बर ऑन डेक कंप्लाइज विद द लोड लाइन रूल्स एंड आल्सो एज पर द सर डेक पार्शियली लोडेड भी हो सकती है सर, पार्शियली लोडेड भी हो सकती है ना? नो देन यू कैन नॉट यूज अ टिम्बर लोड लाइंस। फिर आपकी नॉर्मल लोड लाइन, इसमें वो क्लियरली कहता है कि सिंपल की राइट, जैसे आपने ये शिप देखा है जो आपने देखा था कि टिम्बर जो है राइट फ्रॉम फॉरवर्ड टू द आफ्टर मोस्ट हैच और आफ्टर मोस्ट वेल, पूरा राइट फ्रॉम फॉरवर्ड, राइट फ्रॉम द ब्रेक ऑफ फोक्सल से लेके आपके वहां तक टिम्बर आपने लोड करनी है, एंड पोर्ट टू स्टार्बोर्ड टू द एक्सट्रीमिटीज। ये नहीं कि दो हैचेस के ऊपर मैंने टिम्बर लोड कर दिया और नीचे स्टील भर दूं एंड देन आई से आई वांट टू यूज अ टिम्बर लोड लाइन, नो। सर डज दिस मीन दैट टिम्बर का जो है आपका लोड पोर्ट एक ही रहेगा और डिस्चार्ज पोर्ट भी एक ही रहेगा? नॉर्मली इट वर्क्स लाइक दैट ओनली। कर भी सकता है, पार्ट डिस्चार्ज भी है ठीक है, और डेक का कहीं और उतार देता है बीच में। आई विल नॉट से कि कंसाइनी जो है पूरा लोड एक ही जगह ले, हो सकता है वो दो जगह भी ले सकता है। बट उस वक्त क्या कहता हूँ, अगर आपने उसको पार्ट डिस्चार्ज कर दिया, एग्जांपल अगर आपने डेक लोड निकाल दिया तब तो वैसे ही आप नीचे लोड लाइन पे आप नीचे आ गए, आप अपनी नॉर्मल लोड लाइन पे आ गए। बट लोडिंग के टाइम में है क्योंकि हर बंदा कहेगा कि मैक्सिमम लोड करें, सो मैक्सिमम लोड के लिए जब आपने करना है तो फिर वो टर्म कंडीशन वैसे तो सिंपल आपने देखा, उन स्लाइड्स में भी देखा था कि व्हेन वी कैरी टिम्बर सो वी कैरी राइट फ्रॉम फॉरवर्ड एंड राइट पोर्ट एंड स्टार्बोर्ड, देखा कंप्लीट डेक कवर हो जाती, दैट इज व्हाट दे वांट एज पर द लोड लाइंस। And sir, in that case, under deck we will be loading timber only under deck also. Yes. So throughout the vessel it is. Yeah. So second thing is आपका है कि yes, जो सब डिवीजन बताइए। अब ये तो था कि इवन आई वर्क ऑन जिसे कहते हैं हैंडी साइज बल्क कैरियर। अब टिम्बर लोड लाइन तो उसी शिप को मिलेगी जो टिम्बर कैरियर है, स्पेशली जो टिम्बर कैरियर वही होगा जिसकी कंस्ट्रक्शन रूल्स में भी वो फॉलो करता है। सम एक्स्ट्रा सब डिवीजन इन द टैंक, सम रेज्ड फोक्सल, उसकी भी कुछ हाइट है, तो इसलिए लोड लाइन तो उसी को असाइन होंगी जो हर चीज़ उसकी एज पर लोड लाइन एंड टिम्बर कोड के अकॉर्डिंगली कंप्लाई करेगा। फिर उसको जब यूज़ करना है तब भी बेसिकली है कि टिम्बर राइट फ्रॉम फॉरवर्ड टू मैक्सिमम आफ्ट एंड पोर्ट टू स्टार्बोर्ड एक्सट्रीम तक आपने उसको यूज़ करना। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। स्टेबिलिटी में जो फिर अपना ये जो टिम्बर लोड लाइन है दैट विल come into play only when there is timber on deck, full or partial, it does not matter. अगर है थोड़ा भी it will come into play. Yes.
So stability requirements अगर आप देखिए same thing, ship should be supplied with comprehensive stability information that takes into account timber deck cargoes. अगर हमारी stability booklet है, they give you the worked example, they do various stowage factors के साथ, various timbers के साथ, they give all this. This is the first requirement, and this should enable the master to quickly obtain accurate guidance as to the stability of the ship under varying conditions of service. तो वो तो simple है. Sometimes they say comprehensive rolling period tables or diagrams have proved to be very useful in aid to verifying the actual stability condition. अब ये सिर्फ छोटे जहाजों के लिए है. अगर आप एक्चुअली देखिए कि we can just estimate, बट अगर करेक्ट आपको रोलिंग पीरियड से GM निकालना है, अभी आप कहोगे सर हमें GM निकालना क्यों? वैसे टिम्बर कैरियर में यस ये प्रॉब्लम आती है बिकॉज एग्जैक्ट वेट इज नॉट नोन, तो यू ऑलवेज लोड एज पर द वॉल्यूम. वॉल्यूम सब आपको दे देंगे कि भाई इसका इतना वॉल्यूम, इसका इतना. अब वेट उसका वेरी करता है डेंसिटी से भी. गीला है टिम्बर, गीली है, सूखा है, कुछ भी, उससे भी वेट वेरी करेगा. और मोस्टली दे वर यूजिंग द CBM कि यहाँ भी इतने क्यूबिक, इतने क्यूबिक, इतने क्यूबिक. अब अगर मेरे को एग्जैक्ट वेट ही नहीं पता, तो अगर मैं रफली अंदाजे से ही वेट डाल रहा हूँ या अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी लेके मैं उससे वेट डाल रहा हूँ, तो वो तो करेक्ट वेट नहीं हुआ. दैट मीन्स द वेट कैन वेरी इवन अंडर डेक और ऑन डेक. तो मेरा GM तो वैसे ही फिर तो अप्रॉक्सीमेशन ही. तो इसलिए उन्होंने इन शिप्स की कहा था कि यस कि द बेस्ट वे इज कि आप GM जो है रोलिंग पीरियड से, जब रोलिंग पीरियड से आपने निकालना है, वो छोटे शिप्स के लिए था अप टू 70 मीटर. तो उसमें क्या करते थे कि शिप अलॉन्ग साइड या थोड़ी रोप्स को सेलेक्ट कर दीजिए, शिप को थोड़ा जेटी से दूर रखिए एंड एक दो स्लिंग उठा के ना. स्मॉल शिप्स को तो आप जोर से अगर उस कार्गो एक तरफ लोड करते हो तो शी विल टेक अ स्लाइट रोल, बट वहाँ पे सी भी काम कंडीशन होनी चाहिए, विंड भी नहीं होनी चाहिए. सो नेचुरल उसका रोल पीरियड चाहिए आपको, विच एट सी वी कैन नॉट. वेव एक्शन इज देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर, वो एक नेचुरल रोल नहीं होता उसका. So this is if the vessel is naturally having a angle of roll, फिर उससे आप इसका GM कैलकुलेट कर सकते हैं. बट अगर आप मानिए तो इवन समथिंग. हाँ जी सर, ऐसा कुछ तो सर दे डू व्हाट ऑन ड्राई डॉक ड्यूरिंग द ऑन द टैंकर्स आल्सो, लिस्टिंग टेस्ट या समथिंग कुछ कहते हैं, पेंडुलम्स लगाते हैं अलग अलग डिस्टेंस पे शिप की, एंड देन दे रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम द शिप एंड देन दे पुट द ballast on another tank and they check the list. That is called the inclining experiment. इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट होता है जब शिप नया बनता है, जब बिल्डिंग के टाइम में. Yes sir. देन दे डू इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट कि हाँ पूरा डेटा उसका रिकॉर्ड होता है. ओके सर. बट ये जो आपका रोलिंग पीरियड आप किसी भी शिप का निकाल सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए. इवन कंटेनर शिप्स पे कॉमन है. टुमारो योर चीवो सर ऑल द टाइम यू विल फाइंड कि यार आप नीचे से फ्यूल कंज्यूम कर रहे हो, 8 हाई 9 हाई कंटेनर्स लोड की. ऑफ कोर्स बिगर शिप्स है, नॉट अ GM की प्रॉब्लम नहीं है, बट मीडियम रेंज के जो 5000 6000 या पुराने शिप्स कन्वर्टेड थे, तो उनको ये GM की प्रॉब्लम आती थी. आई रिमेंबर माई डेज, सो आई यूज्ड टू ब्रिज पे भी अप्रॉक्सीमेट रोल पीरियड लेके ब्रेड्थ अपॉन टाइम पीरियड इनटू दैट फैक्टर होल स्क्वायर, सो दैट गिव्स यू द GM कि हाँ यार इतना मीटर है. तो बेसिकली यू कम टू नो ठीक है यार 15-16 सेकेंड्स का आपका रोल पीरियड है, तो शी इज़ ओके. स्टिफ भी नहीं होना चाहिए, 10 सेकेंड वाला रोल पीरियड भी नहीं होना चाहिए, देन शी इज़ टू स्टिफ. एंड बहुत 22-25 सेकेंड का भी नहीं होना चाहिए कि एक जहाज गया वापस ही नहीं आ रहा. सो उससे भी आपको अप्रॉक्सीमेशन लग जाती है. तो इसका भी अगेन है कि यस बेसिकली यू नो आपकी स्टेबिलिटी बुक में भी दिया है हाउ टू कैलकुलेट द रोलिंग पीरियड, एंड उसकी जिस्ट आई हैव रिटन हियर. इट कैन बी GM can be calculated by this method, but इसकी भी limitations हैं. Method is not applicable to vessels with a hull shape that dampens the rolling. For example, vessels with large bilge keels and all that. तो ये तो एक थ्योरी है कि यस कितना रोल करेगा उसका GM ये है, बट उसके बीच में ships have got bilge keel जिससे उसकी रोलिंग डैम्पन हो सकती है, वेव से उसकी रोलिंग डैम्पन हो सकती है. तो ये तो फिर एक अप्रॉक्सीमेशन ही हो गई, तो उसका तो फायदा ही नहीं. बट जस्ट फॉर द थ्योरी पार्ट yes you can definitely read this. मैं आपको इसके नोट्स भी भेज दूंगा, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है. and not recommended for vessels greater than 70 meter in length, and vessel must be made to roll freely in still water, so possible only in calm sea conditions. तो ये तो इसका था. अब बाकी जो हमारा है कि yes the stability at all time should be positive, following should be among the factors which we have to take in account. so जब आप वर्कआउट कर रहे हो, स्टेबिलिटी वर्कआउट कर रहे हो लोडिंग से पहले, सो यू सी दैट द इंक्रीज वेट ऑफ टिम्बर कार्गोज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ड्राइड और सीजन टिम्बर
वो भी हम थोड़ा अकाउंट में ले लेंगे। वैसे इस कोड में दिया उसने कि कौन सी टिम्बर कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, उसने अमाउंट भी दिया है। So sea spray may also increase the weight of timber deck cargo, thus influence the stability. So weight increase of the timber varies with time, exposure and type of timber. कि कितने टाइम है, ये नहीं है कि 10 दिन की वॉइस में अगर जो 2 घंटे अगर कुछ स्प्रे हुआ या बारिश हुई तो मैं उसको पूरा, तब तो उतना पानी नहीं एब्जॉर्ब होगा। एंड सेम टाइम है कि यार 10 डेज की वॉइस है, आई एम गोइंग थ्रू सच अ वेदर, कंटिन्यूस वाटर इज कमिंग, डेफिनेटली टिम्बर विल एब्जॉर्ब मोर वाटर। तो टाइम the vessel is exposed to this, वो भी डिपेंड करता है। so there are lot of factors। तो हम थोड़ा सा उसको ले लेते हैं कि ठीक है, आपने उसका वेट इंक्रीज करके आप अपनी स्टेबिलिटी, अराइवल जीएम निकालते हो, डिपार्चर तो ठीक होता है। अराइवल की प्रॉब्लम आती है कि अराइवल इज द लीस्ट, अगर वो सेटिस्फाइड है देन आई एम गुड। so the value of increased weight of timber deck cargo due to water absorption should be considered in accordance with special instructions in annex C। तो आपके annex C में उसने सारी डिटेल इंस्ट्रक्शंस दी हैं। हाई सेक्रीशन, वेरिएशन इन कंज्यूमेबल्स, फ्री सरफेस इफेक्ट ऑफ लिक्विड इन टैंक्स एंड वेट ऑफ वाटर ट्रैप्ड इन ब्रोकन स्पेसिस विद इन द टिम्बर डेक कार्गो। अब आप ये भी कहोगे कि हाँ, जैसे फ्यूल कंज्यूम हो रहा है तो अगर मेरा जीएम कम होता जा रहा है तो दैट मच बैलास्ट आई कैन टेक। अगर मेरी कंजम्पशन 50-60 टन ऑयल पर डे है, तो इफ आई नो 5 दिन के बाद 200-250 टन फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा, सो यू आर नॉट एक्सीडिंग द लोड लाइन। तो अगर आपके पास अलाउंस है तो आई कैन एनी टाइम बैलास्ट लेके आपकी स्टेबिलिटी को नॉर्मल रख सकते हैं। सो होने दीजिए कंजम्पशन, क्या एक्स्ट्रा वेट भी पानी से ऑब्जर्व होने दीजिए। 200-300 टन मैंने अगर एक्स्ट्रा बैलास्ट ले लिया आफ्टर कंजम्पशन, तो आई एम गुड। बिफोर प्रोसीडिंग टू सी, अगेन यू हैव टू एंश्योर ब्रिज विजिबिलिटी, ship is upright, and of course stability wise she is okay, meets the stability criteria, and wind healing effect अगर आपके computers loadicators में दिया है, sometime they give you, that should be complied with। and थोड़ी सी precautions है कि yes, in case if you feel something is getting wrong, so that time you cease all the loading operations। getting wrong means suddenly a list develops। if you know, list can be either two things, either unequal ballast, unequal bunkers or unequal cargo। but if you feel कि cargo भी even है, ballast भी even है और fuel भी even है, फिर list हो रही है, तो immediately it goes here, there is something wrong with the stability। so then we can do a proper investigation and see how the stability can be improved। so in the event the vessel takes up an unexplained list, no further work should be undertaken until ship's tanks are sounded, assessment made of the ship's stability condition, and draft checks should be regularly carried out during the course of loading, ताकि आपको at least you are watching the cargo, how much quantity is being loaded, and the ship's displacement should be calculated to ensure the stability and draft in final condition are within the prescribed limits। so draft survey के question हम करेंगे, which is very common on these bulk carriers or any ship। तो bulk carriers पे है कि we calculate the amount of cargo with the draft survey। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर आपको वेट नहीं पता, if I carry out the draft survey I can calculate कि हाँ यार ballast is known, test everything is known, so you can calculate even the amount of cargo also। अंडर डेक खत्म हुआ, एक ड्राफ्ट ले लिए, so you know अंडर डेक कितना कार्गो है आपके पास, एंड देन उसके बाद ऑन डेक, तो दोनों का डिफरेंस आपको बता देगा कि ऑन डेक पे भी अगर एट सर्टन स्टेज इफ यू डू नॉट हैव द वेट्स, द एग्जैक्ट वेट्स, सो ड्राफ्ट सर्वे इज द बेस्ट वे। परमिटेड लोडिंग वेट्स ऑन डेक हैचेस शुड नॉट बी एक्सीडेड, सो ये भी वेरी गुड क्राइटेरिया है। यानी कि लोड, वैसे तो टिम्बर से फर्क नहीं पड़ता, इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड इट्स नॉट सो हैवी कार्गो। एमरजेंसी एस्केप रूट्स, जैसे हम लोड करने को जाएंगे, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग कि उन्होंने तो सब कुछ ब्लॉक कर देना। दोस्त गाइस दे आर ओनली इंटरेस्टेड कि हाँ भाई जितनी जल्दी हम लोड करें उसको लोड करते जाएं। There should be free access to ventilation ducts, walls, so these are few precautions which we have to take। and again ships carrying timber deck cargo should operate as far as possible with a safe margin of stability। चलो ये तो हमने कर लिया, that of course everyone will take care। एक्सेसिव भी नहीं होनी चाहिए,
Now you know so much of cargo, excessive stability, very small rolling period, violent rolling, ज़्यादा rolling भी अच्छी नहीं है. I mean, very quick rolling is not good. A lot of strain will come on the lashing wires. तो इसके लिए कहता है operational experience indicate metacentric height should preferably not exceed 3% of the breadth of the ship in order to prevent excessive acceleration. So आज तो of course हमारे पास technology है, computers हैं, locators हैं. So even in your CSM also like container ships you know कि कितने GM पे how much is the stress coming on your lashing rods. So वो भी आप calculate कर सकते हो if that program is given to you. तो ये तो ठीक था. अब आ गया आपका बेसिक प्रिंसिपल फॉर सेफ कैरेज. अगर जब मैंने करना है तो व्हाट ऑल थिंग्स आई शुड कीप इट इन माइंड. सो फर्स्ट थिंग इज प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ स्टो इन विच कुड कॉज द लैशिंग्स टू स्लैकन. तो उसके लिए हमने पहले ही देख लिया दैट एज अ चीफ ऑफिसर आई विल डेफिनेटली गाइड इन बिटवीन. आप भी इंस्पेक्शन करते हो या कॉम्पैक्ट स्टो, नो गैप्स, and there is a binding effect within the stow and reduce to a minimum the permeability of the stow. ताकि जितनी आपने compactness रखी है, जितनी जिसे कहते हैं कि even for water or anything else to get trapped, जितना कम होगा, जितनी कम permeability है, that is the best thing. And before timber deck cargo can be loaded, so सबसे पहली precautions, of course I think आपके level पे you all can well imagine even without reading here. First of all, hatch covers, other openings to spaces below that take area should be closed, battened down. Air pipes, ventilators should be protected, and check walls or similar devices should be examined to ascertain their effectiveness against the entry of water. So कई बार आपके ships में है, even I had that the wing tanks they just get emptied by the check walls which are given on deck. There are no ballast lines, so filling is by the deck water. And deballasting is just there is a check wall given, आप उसको open कीजिए and the wing tanks get drained. उसमें आपको careful रहना. wall खोल के हम कहते हैं ठीक है यार होने दे, drain हो रहा होता रहेगा. And by chance you forget to close these walls, so when the ship is gone down, काफी नीचे जब वो submerge हो जाएगा after loading, so you see the water coming back into the tanks. फिर आप कुछ नहीं कर सकते. तो इसके लिए if that type of system you have, because in ships पे है wing tanks, so ships are small, so you have the wing tanks, so they are operated by without any ballasting deballasting system or lines are given there. So उसका भी आपको ध्यान रखना. Accumulation of ice and snow in such area should be removed, and also normally preferable to have all deck lashings uprights in position before loading. So I think what we have seen in the slides also, that is the first thing we do as soon as the deck cargo is under deck cargo is completed. So we start taking out the lashing material, laying down, and after that we may not have chance. And also necessary should a pre-loading examination of securing equipment. जो आपने देखा है लिखने के लिए आपके पास enough points हैं कि before loading what all precautions I will take. I'll make sure that these things are done. And again, safe and satisfactory access to cruise quarters, pilot boarding access अगर by chance है उसके लिए भी आपको जगह छोड़नी पड़ेगी. Normally इन ships पे होती नहीं है. Those pilots come by the gangway. Gangway is right aft near the accommodation, तो वो भी problem नहीं आती. And machinery spaces, all other areas regularly used for necessary working should be kept clear, especially your emergency exits which are in front of your bridge front. तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल bridge front के साथ जोड़ दिया और आप उसका वाटर टाइट डोर खोल ही नहीं सकते. Safety equipment, devices for remote operation of valves, sounding pipes are left accessible. So sounding pipes बहुत important चीज़ है कि during the voyage हमारे पास और कोई means नहीं होता except by sounding the tanks that there is no leakage, no damage, nothing. So of course today because of less manpower चाहे इक्विपमेंट है बट आई फील कि साउंडिंग जो है एटलीस्ट वंस अ डे एक बार तो जरूर साउंड ऑल द टैंक्स एंड बिल्जेस जस्ट टू गिव यू अ पीस ऑफ माइंड दैट शिप इज इंटैक्ट. यू नेवर नो
कब कहीं टचिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है, कुछ भी हो, इवन द शिप इटसेल्फ, स्पेशली ओल्ड शिप्स, कब क्रैक डेवलप होगा, कहाँ पे, slowly your DB start filling up, so the soundings give a best thing, so इसके लिए वो भी clear होनी चाहिए. It is compact and will not interfere in any way with the navigation, and during loading timber deck cargo should be kept free of any accumulation of ice and snow. So cold countries में अगर हम loading करेंगे तो ये भी एक factor आ जाता है. How best we can do this, and on completion एक inspection और तो सब ships के लिए जरूरी है कि loading operations हैं, whether container ships हो कुछ भी है, anything can get damaged. So sounding is also taken to verify no structural damage has occurred causing the ingress of water. So इसके साथ भी है possible, of course timber से damage तो कम है, but sometime inside the hold also sounding pipe, air pipes can get bent, broken. So उसके लिए भी आपको जरूर देखना. अब आपके पास आ गया same what we were discussing on the ships. If I have to make use of the timber load line, so as per the timber code, this is what simply mentioned, that we should load the timber over the entire available length of the well or wells between superstructure and as close as practicable to the end bulkheads. So right from forward to the aftmost bulkhead जो भी आपका, and at least to the after end of the aftermost hatchway in the case where there is no limiting superstructure at the aft. So basically कहने का है कि right entire length right from forward to aft आपने complete timber load करना है. Athwart ships as close as possible to the ship side after making due allowance for obstructions such as guardrails, bulwarks, and any area of broken stowage thus created at the side of the ship does not exceed a mean of 4% of the breadth. Means तभी आपको ये basically load lines जो हैं उसकी advantage आप ले सकते हो, that you are increasing the freeboard, you are creating a एक binding effect, and at least to a standard height of a superstructure other than a raised quarter deck. अब यहाँ पे मेरे मन में भी आता है कि यार what is there any height restriction? Up to what height we can load this cargo? Anybody? Sir, navigation, Sir, as per the visibility. visibility, Yes. and the hatch covers load density. Very good. Yes. ये तो सिंपल मतलब चीजें आ जाती है कि yes, अगर मैंने amount of cargo if I have to load on these hatch covers, so first thing I'll see the visibility is not affected. ये तो है नहीं कि ब्रिज के ऊपर आगे से कर दें तो लुकआउट कहाँ से रखेंगे. And second is the load density. Anything else? इन दोनों चीजों को छोड़ के चलो उसको भी देखेंगे. And if the timber deck cargo is to be carried through tropical or summer zones, अब height correction जो है, height आपकी जो height of the cargo, अगर आप tropical and summer में जा रहे हैं, then तो ठीक है, then you can load. Only keeping these points in mind, your visibility and this, otherwise there is no height restriction. The height of the cargo does not restrict or impair visibility from the bridge, and for any given height of cargo, its weight shall not exceed the design maximum permissible loading on the hatch covers or deck. But if the timber deck cargo is to be carried through a winter zone or a seasonal winter zone in the winter, then the height of the cargo, there is a restriction that you should not exceed 1/3 of the extreme breadth of the ship. So 1/3 of the breadth of the ship means 15 मीटर breadth है तो 5 मीटर से ऊपर नहीं जाना. So यहाँ पे सिर्फ आपकी restriction है कि if the ship has to pass through these zones in winter, फिर आपके लिए height restriction हो 1/3 कर देता है. Otherwise normal visibility, load density is enough. Basic principle for safe carriage of any timber, solid stowage during all stages, and can be achieved only by supervision. Supervision तो हम कहते हैं, but where are the people? So एक ड्यूटी ऑफिसर के साथ आपने एक या आधा आदमी दिया है तो उसके लिए भी डिफिकल्ट स्टोरी है. इसके लिए I don't know, I feel very strongly whenever in port we are loading, discharging cargo, the entire, at least the crew should be devoted to the loading discharging operations instead of कि यार कोई दूसरा पेंटिंग या मेंटेनेंस का काम करें. So
उसमें हो सकता है, yes, there are a lot of commercial limitations are there, जहाँ भी overtime and this and that, but overall if you ask me, I will definitely prefer कि no, ड्यूटी ऑफिसर के साथ if you have 3 ABOS, so at least 2 बंदे एक वॉच में डाल दीजिए. So idea is a good supervision for loading, damage, किसी भी चीज को they can very well do it. Sir, हाँ जी. sir, for checking, like sir, we are in the voyage and sailing from here, means here and there, and sir, during the voyage, if you want to check the lashings or the cargo, then can we go on the top of the cargo? Yes, yes. We can. The only passage left is with us when the going from top of the cargo. But बच्चे again, please be very careful. If the weather is bad, then no. Weather bad तो even आपका जो bad weather precaution में आता है, even deck पे restriction आ जाती है, isn't it? Yes, So sir. same way. Otherwise, normal if ship is not rolling, we can very happily go over the cargo. There are special boots. Rather, I'll call it So, sir, overshoes. So, sir, for going on such height, there are some temporary arrangements or the permanent arrangement. Yeah, temporary. We make the ladders. We can make the ladders. आजकल तो of course आपके पास collapsible aluminium ladders हैं और even लकड़ी की तो कमी नहीं होती. We have enough dunnage. उसके साथ भी I remember we used to make the ladders nails के साथ करके उसको fix कर देते थे cargo के साथ. So right from the aft you can climb on this ladder and then walk, and then again forward में भी cargo से नीचे ladder लगा दी. अब कोड क्या कहता MOT है? ladder. नो, एमओटी तो नहीं लगा सकते आप. एमओटी तो जगह नहीं होती ना. आपने देखा है जैसे कि यस यू हैव हार्डली एनी गैप बिटवीन द ब्रिज एंड द कार्गो. तो वहाँ पे आप अपनी एल्यूमिनियम की लैडर या अगर लंबी है वो लैडर लगा सकते हो. यू हैव टू जस्ट क्लाइंब ओनली ऑन टॉप ऑफ द कार्गो. बट एज पर द कोड अब तो हमें पूरा एक वॉकवे बनाना है. तो आपको अगर एग्जाम में पूछे फिर तो हम कहेंगे कि हाँ जी आई विल मेक अ वॉकवे ऑन टॉप ऑफ द कार्गो. How, sir? How? How sir it is made? इवन डनेज के साथ फ्लैट डनेज है आपकी. आपने देखा है ट्री ट्रंक्स, बिकॉज ये जो ट्री ट्रंक्स हैं बेसिकली राउंड होते हैं, isn't it? एंड जब पानी पड़ेगा तो स्लिपरी हो जाते हैं. इनकी जो ऊपर बार्क है, हाँ सर. used to carry these pine trees, they are very slippery. पानी पड़ेगा और प्लस उसके अंदर एक रेशा होता है, we call that resin, amla birosa. So there is a sort of a oil. So these trees, उसकी थोड़ी बार्क अगर निकल जाएगी तो these trees become very slippery. कहने को साथ साथ हैं बट यू कैन इमेजिन राउंड ट्रीज है तो बीच में तो गैप आएगा. उसके लिए तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली इफ यू आस्क मी एज अ सीमैन हम उसके ऊपर आराम से चल सकते हैं. बिकॉज देर आर ओवर शूज़. आपके सेफ्टी शूज़ के ऊपर आप एक ओवर शूज़ पहनते हो जिसके नीचे स्पाइक्स होती हैं, आई मीन नेल्स टाइप होता है. जैसे वेरी लाइट वन. जैसे आप हॉस्पिटल में जाओ तो प्लास्टिक की थैली आपके शूज़ के ऊपर पहना देते हैं. तो दिस टाइप के स्पाइक्स टाइप होते हैं जिसे ओवर शूज़ कहते हैं. सो दे आर प्लेंटी. सो दे आर केप्ट नियर योर चेंजिंग लॉकर्स. तो उसको पहन के आप कीजिए, फिर आप स्लिप नहीं होंगे. बट सम पीपल यू नो दैट दे आर ब्रेव. तो एक आधे का स्प्रेन होता ही है कि पाँव मुड़ेगा. तो नॉर्मली एज अ चीफ ऑफिसर यू रिकमेंड क्या हमको उसको शिप पे मंगा के भी रखना है कि यस ओवर शूज जो हैं या जो स्पाइक्स हैं उसे जो स्टड्स टाइप कहते हैं, बेसिकली वो स्पाइक्स टाइप होते हैं. पतली पतली नेल्स होती हैं, नॉट वेरी शार्प. सो दे डू नॉट स्लिप. उसके साथ आप उनके ऊपर आराम से चल सकते हो. पीछे भी लैडर है. देन यू वॉक ऑन द कार्गो. शिप इज़ अ हैंडी साइज. शिप की ब्रेड्थ काफ़ी होती है. सो देयर इज नथिंग टू वरी कि आप ऊपर से साइड पे नहीं है, सेंटर में जहाँ क्रेन्स हैं उसके साथ चलते जाइए. सो यू कैन ईजिली वॉक ऑन दैट. बट वॉकवे भी बनाना है तो यस वी हैव अ स्ट्रॉन्शंस. जो स्ट्रॉन्शंस लगा के बीच में मैन रोप लगा दीजिए. तो इट इज़ ईजी. तो ऑफ कोर्स थियोरेटिकली तो वी ऑल से दैट कि जिसे कहते हैं कि सेफ्टी ऑफ द पर्सन्स और द सेफ प्रैक्टिसेस के लिए अगर आपको कोई पूछता है तो ऑफ कोर्स वी विल से दैट वी विल बी मेकिंग द वॉकवे ओवर द कार्गो इफ देयर इज नो प्लेस. बट आई ऑल्सो स्टार्ट वंडरिंग कि वाई डोंट दे, जैसे कंटेनर शिप्स में उन्होंने डेक छोटी कर दी है, मेन डेक इज स्मॉल. तो उस तरह से मेन डेक को स्मॉल कर दो, मे बी 40-50 सेंटीमीटर, एंड देन पुट दिस अपराइट्स नियर द हैच कवर्स. मेन डेक छोटी है तो थोड़ा सा कार्गो कम होगा, दैट वेल इज. बट अगेन दैट लोड लाइन कम्स इनटू पिक्चर कि भैया फिर तो ये
आपका इफ दैट मेन डेक इज एम्प्टी, जिसे हम वेल कहते हैं, साइड की जो पोर्ट एंड स्टारबोर्ड साइड्स होती हैं, बट मे बी समटाइम यू विल फाइंड दिस रूल कमिंग कि ठीक है यार फ्री बोर्ड को तो जाने दो, बट दिस इज़ वेरी गुड दैट आप आराम से लोड कीजिए आपके अपराइट से, इंस्टेड ऑफ फिटेड ऑन द एक्सट्रीम ब्रेड्थ ऑफ द शिप नियर द बुलवर्क, हैच कवर्स के पास लगा दो उनको, एंड देन यू कैन हैप्पीली वॉक। आगे पीछे आप कुछ भी कर सकते हो, कार्गो का भी डेंजर नहीं है, लैशिंग का भी कुछ नहीं, एनी टाइम यू कैन पुट एक्स्ट्रा लैशिंग, कुछ भी कर सकते हो। तो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, मे बी दिस टिम्बर कैरियर्स दे मे अडॉप्ट सम डिफरेंट कंसेप्ट। सो ये तो था आपका लोडिंग का। सिक्योरिंग, सिक्योरिंग के लिए अगर आप देखिए तो वेरी सिंपल थिंग कम्स कि यार डेक कार्गो मैंने देख लिया एंड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिफोर वी स्टार्ट लोडिंग। सर हाँ जी, ये जब भी अगर विंटर लोड लाइन जोन से समर जोन जा रहे हैं या समर जोन से विंटर जोन जा रहे हैं तो हमेशा वही जो हाइट का रिस्ट्रिक्शन रहेगा। यस यस, सी वो तो बच्चे देखो, हमने लोडिंग के टाइम में हमें पता है कि फ्रॉम विच पोर्ट वी आर लोडिंग एंड वेयर व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन। सो तो विंटर डेस्टिनेशन जोन में हम कभी टिम्बर लोड लाइन से कंप्लाई नहीं कर पाएंगे मतलब। या विंटर जोन में अगेन आपका जो हाइट है, हाइट रिस्ट्रिक्शन के लिए उसने कहा है कि यस इट शुड बी, अदरवाइज वो कहता है कि यस कि भैया मैक्सिमम हाइट पे होना चाहिए कार्गो टू कंप्लाई विद दिस लोड लाइन रूल्स। तो नेचुरली वहाँ पे अगर आप लेस लोड कर रहे हो तो लोड लाइन वैसे ही, मतलब शिप वैसे ही सबमर्ज नहीं होगा, नॉर्मल लोड लाइन पे ही नहीं आएगा। हाँ सर। बट तो बच्चे समटाइम इट हैपेंस, आई हैव आल्सो सफर्ड वंस कि आपका टिम्बर फुल लोड पे आता है तो शी कम्स टू द मार्क्स। ऐसा नहीं है कि लाइट होती है टिम्बर, दिस ट्रीज आर वेरी हैवी, अंडर डेक ऑन डेक आप लोड करोगे तो शी कम्स टू द मार्क्स ऑल्सो। सो शी कम्स टू द लोड लाइन, जिस लोड लाइन पे अभी आपको यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको बैलास्ट सारा कुछ बिल्कुल स्ट्रिप करना पड़ेगा, सब कुछ निकालना पड़ता है। यस। तो इसके लिए एज अ चीफ ऑफिसर यू गॉट टू बी रियली केयरफुल, क्योंकि कई बार होता है कि थोड़ा बहुत बैलास्ट भी है, द शिप हैज कम टू इवन कील, फिर आप रीबैलास्टिंग मुश्किल हो जाती है। एंड अगर 10-10 टन भी अगर मेरे एक टैंक में रह गया, और 10 टैंक है तो 100 टन तो कार्गो, एंड सडनली यू विल फाइंड कार्गो तो बुक कर दिया उसने, अब कार्गो इज ऑन द जेटी, वो कार्गो वापस भी नहीं जा सकता एक बार कस्टम क्लियर होके आ गया। एंड आई तो कैन सर नॉट लो। ऐसा भी होता है क्या कि विंटर जोन से समर जोन में जा रहे हैं तो वो लोग बोलते हैं कि लोड कर लो, वहाँ तो समर जोन है? नो 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 बच्चे, दैट आई थिंक ये तो आपका क्वेश्चन है इसका कि जब आपने लोडिंग करनी है तो यू पूरी वॉयज का आप देखते हो। समटाइम यस कि पहले मेरे पास समर जोन है तो आई लोड अकॉर्डिंगली, फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ इवन बंकर कंजम्पशन की, बाय द टाइम आई हिट द विंटर जोन सो मेरी डिस्प्लेसमेंट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। Yes, sir. तो उसके लिए क्या होता है कि यस समटाइम वी लोड, एग्जांपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल दैट पॉइंट ए से मैं चला हूँ एंड देन फर्स्ट मेरे को आई हैव टू पास थ्रू द समर जोन फॉर से 10 days, एंड 10 days के बाद आई मे हैव टू पास थ्रू अ विंटर जोन फॉर अ डे। So load line rules are very clear कि when the ship is in winter zone, उसकी जो winter displacement है वो exceed नहीं होनी चाहिए। Yes, sir. अब उसके लिए क्या है कि उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि हाँ how much cargo to load, because हमारे पास bunker everything is there, so I know that 10 days में मेरा bunker consume होगा। So naturally अगर मैंने उतना कार्गो लोड किया है, so ये तो लोड लाइन चीफ ऑफिसर्स के लिए सबसे बिगेस्ट जॉब यही है कि हाउ मच कार्गो, कोई भी शिप हो, एनी शिप, टैंकर, बल्क कैरियर, दैट नॉमिनेशन जिसे कहते हैं कि कार्गो नॉमिनेशन के लिए आपको ही बताना है कि हाउ मच कार्गो यू कैन लोड। द कंपनी और द चार्टर विल गिव यू ओनली द पोर्ट्स की फ्रॉम दिस पोर्ट टू दिस पोर्ट एंड ड्यूरिंग दिस टाइम। इसके लिए आपके लोड लाइन चार्ट्स कम इनटू पिक्चर। Yes. कोई बात नहीं, दिस सिंपल है आजकल, नॉट सो डिफिकल्ट, सो देयर इज नथिंग टू वरी, बट यस कि शिप में डिफिकल्ट नहीं है। सो यहाँ पे आपको आंसर करना है व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर की, यस तो आप थॉरो होने चाहिए कि सर यस आई विल चेक ऑल दीज थिंग्स, उसकी कैलकुलेशन करूँगा, देन ओनली वी विल टेल द कंपनी वी कैन लोड सो मच कार्गो, एंड ऑफ कोर्स नेवर नेवर वी विल एक्सीड। ना तो मेरी लोड लाइन सबमर्ज होनी चाहिए और ना ही मेरी डिस्प्लेसमेंट एक्सीड होनी चाहिए। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जब हम ये करेंगे, क्या कहते हैं, ड्राफ्ट सर्वे के क्वेश्चंस। Yes. या उस टाइम ये थोड़ा सा इसमें वेरिएशंस हैं, थोड़े ट्रिकी भी हैं, सो आई विल पुट अ
I will give lot of time for these draft survey questions, numerical जो हैं. तो theory I may go a little fast because you can read this, but numericals के लिए बच्चे be very very careful. चलो ठीक है. बाकी तो ये था कि ये slashing के लिए first of all the purpose is there and efficiently and that we have to do, and it should be installed in such a manner that timber should be, जितनी भी deck cargo है, it is touching, the lashings are touching the cargo. फिर आपका कार्गो कहीं नहीं जाता. ये नहीं कि ऊपर से वायर पास कर रही है और नीचे जो है कार्गो थोड़ा नीचे है, उसकी हाइट कम है, तो फिर वो कार्गो डेफिनेटली मूव करेगा, चाहे श्योर ना जाए, बट इट विल स्टार्ट मूविंग. एंड सेकंड थिंग, ऑल लैशिंग कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर सिक्योरिंग शुड पोजेस ब्रेकिंग स्ट्रेस नॉट लेस देन 133 किलो न्यूटन. ये सारा आपका टिम्बर कोड से है. टिम्बर कोड में जहाँ कैलकुलेशन है वहाँ से वहाँ मेंशन है. And after initial stressing, show an elongation of not more than 5% at 80% of their breaking strength. And again, because we are using the same lashing, so थोड़ी बहुत तो wire elongate होंगी हो, तो उसके लिए उसने लिखा है कि yes, इसकी जो elongation इतनी नहीं होनी चाहिए. Every lashing should be provided with tightening device or system that it can safely and efficiently operate when required. अब उसको simple ये इसके लिए उसका कहने का मतलब है कि आपके जो turn buckles हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ये नहीं कि हमने जब टाइट किया उसके पूरे थ्रेड खत्म हो गए, अब वॉइस में कैसे टाइट करेंगे. अब मेरे पास सिंपल सीमेंटशिप है कि ठीक है यार, अगर बाई चांस एक पूरा हो जाता है तो वी कैन पुट 2 टर्न बकल्स. वायर को तो छोटा बड़ा नहीं कर सकते, तो वी कैन यूज 2 टर्न बकल्स कि चलो उसके साथ हम टाइट कर सकते हैं. अब उन्होंने इसका भी सारा ये, द लोड प्रोड्यूस्ड बाय दिस टाइटनिंग डिवाइस ऑन द सिस्टम शुड नॉट बी लेस देन इतने किलो न्यूटन इन द वर्टिकल पार्ट. तो ये तो सारी कैलकुलेशन है. इफ यू कैन रिमेंबर लिटिल बिट एंड पुट इट इन योर आंसर, तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर जो है अच्छा दिखता है. एंड ऑन कंप्लीशन एंड आफ्टर इनिश. हाँ जी सर. सर जब अपन इसको लोड करते हैं ना सर अपने टिम्बर डेक उसको कार्गो को, तो सर पहले अपन डेक के ऊपर एक फुट चेन बिठाते हैं ना, फुट चेन. ये फुट चेन आपने क्या बताया, और फुट चेन को सर जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा इट में बी हैंगिंग ऑन द साइड, एंड देन व्हेन द फुल हाइट ऑफ द कार्गो इज देयर, देन वी पिक अप दिस चेन ऑन द साइड. करेक्ट. या चेन या वायर, उसे फुट वायर कहते हैं. फुट वायर या फुट चेन, ठीक कह रहे हो. नॉर्मली आपकी जो मेन डेक है वहाँ पे आईज हैं, देयर आर थिक आईज विच आर टेस्टेड, वो आईज आर वेल्डेड देयर. तो उन आईज के साथ बिफोर वी स्टार्ट लोडिंग तो हम उसको शैकल कर देते हैं, चेन्स को भी शैकल से हम लगा देते हैं, और दूसरा एंड जो है उसका हम हीविंग लाइन से पकड़ के उसको नीचे लटका देते हैं. फिर हीविंग लाइन के साथ हम ऊपर खींचते जाएंगे जैसे जैसे कार्गो ऊपर जाता जाएगा. एंड देन वी हैव टू पास इट ओवर द कार्गो. एक आपकी चेन या एक वायर जो है पोर्ट साइड से आएगी, दूसरी स्टार्बोर्ड से आएगी, दोनों को हम सेंटर में टर्न बकल से ज्वाइन कर सकते हैं. तो दैट इज द हाउ द फुट वायर्स और फुट चेन्स आर बेसिकली पुट. आप फिगर में देखोगे, आई विल शो यू हियर. So every lashing should be provided with a device for installation to permit length of the lashing to be adjusted. वो ठीक है, बॉटल स्क्रू से हम कर सकते हैं. स्पेसिंग नेक्स्ट comes the spacing of the lashing. कितनी होनी चाहिए फॉरवर्ड टू आफ्ट, अगर आप लैशिंग कर रहे हो तो उनके बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए. तो सबसे पहली चीज़ तो है कि अगर मैंने यार जैसे हमने टिम्बर देखी है, ट्री ट्रंक्स देखे थे कि अभी लैशिंग तो है कि उसके दोनों एंड में एटलीस्ट जो भी एक ट्री है, चाहे 6 मीटर लंबा है 7 मीटर है, उसके बोथ द एंड्स में एक एक लैशिंग तो होनी चाहिए. तो है नहीं कि हम उसको मेजर करते जाएं, एक एंड में लैशिंग आ गई दूसरा एंड फ्री है, वो तो गिर जाएगा. तो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज दैट बोथ द एंड्स दे शुड हैव द लैशिंग, स्पेशली द एक्सट्रीम वंस जो एक्सट्रीम साइड पे है, नॉट द बीच वाले, एक्सट्रीम साइड्स पे. एंड देन सेकेंड वो कहता है कि इफ द वायर क्लिप्स आर यूज्ड टू मेक अ जॉइंट इन द वायर लैशिंग, अगेन वो वायर वाली आ गई आपका, हमने जो बुलडॉग ग्रिप का देखा था वो चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. नंबर साइज ऑफ रोप क्लिप्स यूटिलाइज शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द डाया ऑफ द वायर रोप एंड शुड नॉट बी लेस देन 4. तो ये उन्होंने अगेन, दिस इज अगेन द सेफ्टी, आप किसी भी बुक में ले लीजिए, अगेन जैसे कि मिनिमम 4 जो होने चाहिए, बट अगेन डिपेंड्स ऑन द डाया ऑफ दिस वायर. सो ये वायर जो 1820 mm की है, 4 क्लिप्स आर इनफ एंड दे शुड बी स्पेस्ड एट इंटरवल ऑफ नॉट लेस देन 15 सेंटीमीटर. तो ये तो हमने भी देख लिया. सैडल पोर्शन एंड रोप क्लिप्स का जो आई थिंक वी हैव सीन इन द लैशिंग टाइम, वही स्लाइड्स यहाँ पे हैं कि करेक्ट वे ये है. एटलीस्ट 4 क्लिप में लगाऊंगा एंड उसको इस फैशन में लगाऊंगा दैट द
clips do not. They have a better holding power. Now it should be also secured throughout its length by independent lashings. तो ये भी है कि independent होनी चाहिए. अब spacing की आ गई. Maximum spacing of the lashing should be determined by maximum height of the cargo. तो मैं यहीं पे रोकूंगा. आपका lunch time भी हो रहा है. So only thing is spacing कितनी होनी चाहिए? For a height of cargo up to 4 meter, spacing should be 3 meters. And अगर आप 4 मीटर से आपकी कार्गो की हाइट ज़्यादा है, then the spacing should be 1.5. So ये थोड़ा सा I think very easy to remember कि आप अगर कभी sketch भी बनाओगे तो we can show this कि yes up to 4 meter, 3 meters and आपके जो uprights हैं वो भी 3 meters की distance पे ही लगे होते हैं. And कार्गो ऊपर जाता है, then in between we can put these foot wires or chains. ठीक है, चलो we stop it here. I don't want to delay your lunch. So this 3 meter spacing between the lashing. Yeah, if the height of cargo is up to 4 Okay. meter. अगर height of cargo is more than 4 meter, then the distance between these lashing should be less, 1.5. 1.5 and Yeah, and even the stanchions also. yeah, ये देखिए, I think somewhere I'll show you. Yeah, like this. This distance जो है Okay. lashing का 1.5 और 3 meters. आगे से Okay, पीछे sir. तक ना ये डिस्टेंस जो है लैशिंग का कितना होना Sir, चाहिए? these are foot wires, no sir? Right from the deck. करेक्ट Okay. करेक्ट. चलो हैव अ लंच. सो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया, उसको कंटिन्यू करके एक सेशन में ख़त्म कर देंगे टुमारो एंड देन वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक्स.